First of all, good morning and good afternoon, good evening to everyone. And so sorry for last day that we are not coming live at last day due to some reasons we are not coming live. So we are just waiting for our today guest, Mr. Alok Rana from Khurja. He is also a direct seller and he is too young. Approximately he is about 18 to 19 max to max. And now we are just waiting for Mr. Alok Rana. And think so that he come. This time he is not come. I don't know why, but okay. अभी पूरे 5 नहीं बजे. So sorry. This time it will be my mistake that there are no completely 5 p.m. Just 2 minutes to go. One beer. Why are you laughing, Prince? Hello, Prince. We are just wait for our today's guest. Tomorrow will be you. Be ready for tomorrow, Prince. Is I am audible, Prince? Is I am audible? I just wait for today's guest, but I don't know where he is. So we are just wait for today's guest, Mr. Alok Rana. Okay, thank you so much for this information. I don't know why people are not on time. So God salve. Where is Alok Rana, yaar? Where is Alok Rana? Due to something else, we are just wait for our today's guest. I think so. He is some late, and here is Alok Rana. And here is Alok. Hello, sir. Is I am audible to you? I don't know. Internet connection. सब वाईफाई लगवा लो यार. Connection by their side. Okay, he is left and surely he is coming too fast because I think so there is an internet connection. And I have to inform you that our last 4 sessions are just going response awesome on YouTube. Is on my another channel. With Saurabh Shukla sir, we have crossed approx 5k views on their YouTube channel, and with Miss Alka Rajput, we have crossed approx 4k views on their YouTube channel. So we have too much good responses from these sessions, and it is for only educational sessions, nothing so more. So there it is. Cannot. Is there internet connection by okay by your side, Alok? Yes. All right, all right. And I think so your screen is so wobble, so you can rotate your screen by them. Yeah, Is sure, it? sure. Yes. Is it? Yeah, it is now good.
Yes, yes. Okay, first of all, welcome too much Alok for today's live. Thanks for you, sir. Thanks for you for giving me this opportunity. Thank you so much, sir. Okay, all right. First of all, Alok, introduce yourself first. Yeah, thank you so much, sir. Basically, my name is Alok Rana and I'm from Khurja, Uttar Pradesh. And आलोक वन currently मोर I थिंग am, आलोक yeah, आलोक वन मोर थिंग yes, हम sir. हिंदी में बात करते हैं. इट्स टू गुड श्योर टू सर, अस. थैंक यू ठीक सर, है. थैंक यू। मेरा नाम आलोक राणा है और मैं खुर्जा से बिलोंग करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और बेसिकली अभी मैं 12th पास आउट करके बीसीए परसुइंग कर रहा हूँ बुलंदशहर एसबीएमटी से। और करंटली नेटवर्क मार्केटिंग मैंने चूज किया। थैंक्स फॉर गॉड एंड थैंक्स फॉर यू सर कि आपने इंट्रोड्यूस किया नेटवर्क मार्केटिंग और उसको ज्वाइन किया। पर वे आज साथ नहीं है, पर सर जो सीखा है आपसे वो बहुत काम आता है इस इंडस्ट्री में, और बहुत सारे लोगों को वो सिखा पा रहा हूँ जो आपसे सीखा है सर। सो थैंक्स फॉर यू। ओके ओके दैट्स ऑल. सो आलोक, आप बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बेसिकली सर खुर्जा का रहने वाला हूँ। खुर्जा के पास मेरा एक गांव है, बगराई नाम, जिसका बगराई नाम है, और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सो सर आलोक, फ्रॉम यूपी के एक छोटे से गांव से नेटवर्क मार्केटिंग या मैं कोई भी इंडस्ट्री कह लूँ, आपने यस, यस। ये सेलेक्ट क्या कैसे किया? बेसिकली सर जो मेरे को इंट्रोड्यूस किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, मेरे फ्रेंड थे मृदुल शर्मा, और उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली सर पहले मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था, मैं रनिंग करता था, 100 मीटर 200 मीटर रनिंग। और दिल्ली में यहाँ मॉडल टाउन के पास छत्रसाल स्टेडियम है, वहां पर किया करता था। तो बेसिकली सर शुरू से एक चुल्ल थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, पैसे कमाने हैं, अपने एक बैकग्राउंड को, एक स्टेटस को मेंटेन करना है। क्योंकि आज लाइफ में सर एक चीज मैंने देखी है कि उन्हीं लोगों की वैल्यू है जिनके पास पैसा, नाम, इज्जत और शोहरत है। तो वही एक चुल थी, शुरू से एक इच्छा थी। तो फ्रेंड है मृदुल शर्मा, उन्होंने बोला कि भाई आज एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है, तू आ देख। भगवान ने चाहा तो 6-7 महीने में दोनों मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। तो बस सर वहां पर गया, तो मृदुल सर ने मेरे को बताया कि क्या सब कुछ है। मैंने देखा तो एकदम परफेक्ट लगा। और उस दिन मेरे को अभी भी याद है कि मैं घर गया और मम्मी को मैंने बोला, मम्मी मेरे को पैसे दो फटाफट और बहुत कुछ हो जाएगा, हम मेरे पास पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। मम्मी ने बोला ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा होता है और ऐसा होगा, देखना। तो उनसे मैंने पैसे लिए और आईडी लगाई। उसके बाद 1 महीने के लिए सर मैंने काम नहीं किया। काम इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे हर किसी को होता है कि क्या मिलेगा इसमें, क्या है। तो फिर एक दिन मेरे को मेरे ब्रदर मिले थे और उन्होंने मेरे को बताया शिवम गोस्वामी सर के बारे में कि वो ऐसे ऐसे हैं। फिर मैंने जब आलोक, उनके बारे में नो देखा। नेम. आलोक, नो नेम ओके, टू एनीवन प्लीज. ओके, श्योर सर, श्योर। उनके बारे में मेरे को बताया, फिर मैंने उनकी वीडियोस देखी, उनसे मिला। उसके बाद एक फेथ हुआ कंपनी पर कि हाँ कर सकते हैं, कुछ बेटर हो सकता है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और आज सर चली रही है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जबरदस्त। अगर मैं आपसे बोलूँ नाम, शोहरत, पैसा और स्किल्स, अगर इसको एक ये रॉ में लगाना हो फॉर स्टार्टिंग टू लास्ट, तो आप इसको रॉ में किस हिसाब से लगाओगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू सर रो लास्ट? में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले जो सेलेक्ट करूंगा वो स्किल्स है। क्योंकि जब तक हमारे पास किसी पर्टिकुलर चीज के लिए स्किल्स नहीं आएंगी तो हम उस पर एक एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते। तो पहले स्किल्स है मेरे हिसाब से। स्किल्स के बाद आता है कि उसके बाद एक फेम क्रिएट होता है। स्किल्स जब आ जाएंगी फिर लोगों को एक दिखेगा कि हाँ एक्चुअल में कुछ जानते हैं ये, तो एक फेम मिलेगा। देन फेम के बाद मेरे लिए जो लास्ट चीज आती है वो है पैसा। पैसा. ओके. तो यस। आप बस यही करते हैं कि आप एजुकेशन वाइज भी आपका कुछ है, एजुकेशन में भी आपने कुछ किया हुआ है? नहीं सर, बेसिकली मैं एजुकेशन में फिलहाल बीसीए परसुइंग कर रहा हूँ। इस बार मैंने एडमिशन लिया है, बट जो मेरा फोकस है वो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ही है। क्योंकि अगर पढ़ाई की भी मैं बात करूँ सर, पहले के टाइम अगर हम जाएं थोड़ा पीछे, तो पहले के राजा महाराजा जो पढ़ाई किया करते थे वो नॉट एज अ जॉब पर्पस कि मेरे को कुछ करना है, वो एक इसलिए किया करते थे कि लाइफ में एक एजुकेशन बैकग्राउंड हो, ताकि हम सीख सकें कि लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, उनसे कैसे फेस करना है, कैसे हमें चीजों से सीखना है। तो बस मैं एक एजुकेशन को अपना एक इसलिए रखना चाहता हूँ कि उनसे मुझे कुछ सीखने को मिले। तो फैमिली इसके लिए आपको सपोर्ट देती है? नहीं सर, स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं कि मेरी अभी तक मदर हैं जो मेरे को सपोर्ट करती हैं, मगर मेरे फादर हैं जो सपोर्ट नहीं करते। एक्चुअल में सर मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा कहते हैं कि क्यों भागना, जितना मिल जाए उसमें खुश हैं। तो मैं हमेशा अपने अंदर एक ही चीज सोचता हूँ कि यार जैसे अगर मेरे फादर हैं, उनके पास 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी होती या इतने अमीर होते, तो मैं उनसे उनके अगेंस्ट भी नहीं जाता, उनसे कुछ कहता भी नहीं, बस चुपचाप रहता। क्योंकि मुझे पता था उनके बाद वो मेरे पास ही आना है। बट एट दिस टाइम कि हमें पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो क्रिएट करना है वो मुझे खुद क्रिएट करना है।
जो भी मेरे को पाना है वो मैं खुद पा सकता हूँ। तो आज मैं उनके खिलाफ बेशक जाता हूँ, मगर मुझे पता है कि आने वाला टाइम मैं उनको ही ये सब चीजें देने वाला हूँ, और उनको अगर दिखाना मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी जर्नी को बस एक लाइन में एक्सप्लेन करो, एक लाइन में, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, फ्रॉम स्टार्टिंग जर्नी, टू अभी तक करंट? यस यस। तो सर एक लाइन में जो मैं अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो बस यही है सर कि जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, तो क्या देखना कद आसमान का। बहुत मजा आएगा सर, और बहुत ही मजा आएगा। अब तक का सबसे अच्छा मोमेंट क्या था लाइफ के अंदर इस अब जर्नी के तक दौरान? यस सर, अब तक का सबसे अच्छा मोमेंट था कि एक्चुअली हम दिल्ली आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए, और हम्म। मेरा एक उसे सपना रहा था, जब देखा शाहरुख खान के, एक पढ़ा कि शाहरुख खान सर ने ट्रेन में विदाउट टिकट सफर किया, उसके बाद आज वो यहाँ तक पहुंचे, तो मेरा भी एक सपना था कि मैं ट्रेन में विदाउट टिकट सफर करूं, और वो भी एक्सप्रेस में, और प्लेटफॉर्म पर सोने का मौका मिले, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे जब स्टेज पर खड़ा हूं तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता पाऊं कि मैंने क्या क्या देखा है या क्या क्या चीजें हमने एक एक्सपीरियंस करी है। तो मेरे को वो दिन याद है, रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, हमारी सारी ट्रेन छूट चुकी थी अपने घर वापस जाने के लिए, तो एक लास्ट ट्रेन थी जो अलीगढ़ जा रही थी एक्सप्रेस, और हम खुर्जा से भी एक्सप्रेस में विदाउट टिकट आए थे। दो डिब्बों के बीच में जो खाली स्पेस होता वहां खड़े होकर आए थे, डिब्बे में अंदर नहीं, ओके। दो डिब्बों के बीच में खाली खाली स्पेस होता वहां खड़े होकर आए थे, ताकि टीटी ना पकड़े हमें। और फिर रात में जब सारी ट्रेन छूट गई थी, तो अलीगढ़ की लास्ट ट्रेन थी, हमारी पूरी टीम वहां थी। जब अलीगढ़ की हमें पता चला कि ये ट्रेन अलीगढ़ की है ही नहीं, वो आगे जाकर रुक गई, फिर जब वो अलीगढ़ वाली आई हमारे सामने, तो हम जंप करने लगे उस ट्रेन में, जंप डिब्बे से, एक डिब्बे से सामने वाले डिब्बे में। तो जब हम जंप रनिंग कर में? रहे थे, नो नो, डिब्बे से एक दूसरे डिब्बे में जंप कर रहे थे सामने वाली ट्रेन में। तो टीम लगभग लगभग पूरी टीम चढ़ चुकी थी उसमें। मेरा एक दो टीममेट था, मनीष जी नाम है उनका, तो मनीष जी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए। अब उनके चक्कर में क्या हुआ कि चाहते तो हम लोग जा सकते थे, क्योंकि उनके साथ 3-4 लोग वहां थे, वो वापस उन्हें ले आते, बट मैंने एक चीज ठानी कि यार इनको लाया तो मैं ही था, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो हम सारे लोग वहां उतर गए, और उसके बाद उन्हें लिया, वापस दिल्ली गए, और वो पूरी रात हमने ट्रेन में बैठकर गुजारी, और प्लेटफॉर्म पर सोए। सोए कैसे थे, 1 घंटा सोते थे, ठंड बहुत हो रही थी। एक मेरे पास ब्लेजर था, बस ब्लेजर को ओढ़ लेता था, उठ जाता था, ब्लेजर उड़ता था, फिर उठ जाता था, फिर सोता था। तो वो रात, वो मेरे को मोमेंट आज तक याद है, और उस मोमेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि लाइफ में हमें ऐसा नहीं है कि हम अगर एक टॉप पर भी पहुंच जाएं, तो हमें एक कंफर्ट लाइफ लानी चाहिए, हमेशा हमें चैलेंज करना चाहिए, और कितनी भी बुरी परिस्थितियां आए, हमें उसके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए, और यही नेटवर्क मार्केटिंग अगर भी मैं हमें आप सिखाती है। और अगर मैं बात करूं अब तक का सबसे सैड मोमेंट, तो? यस, सबसे सैड मोमेंट सर, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये बात है सर एक्चुअली 1 जनवरी की बात है, ये अभी 2020 की। एक सबसे सैड मोमेंट में से था ये कि उसमें क्या था कि सर एक बंदा था जो मीटिंग के लिए आए हुए थे, मेरे टीममेट हैं, उनके गेस्ट थे, तो उनको मैंने मीटिंग दी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। तो जो मेरे टीममेट हैं उनको मैंने बोला कि आप जाओ, इनका आप वो करो, क्या नाम है इनका, मतलब बातचीत करो और फॉलो देखो ये अप? पेमेंट। हाँ, फॉलो अप, यस, फॉलो अप करिए, पेमेंट देंगे ये। उसके बाद उन्होंने, क्या हुआ पता नहीं, सब कुछ सही चल रहा था, वो एंड में वो गैस बोले कि 10 साल बाद देखते हैं कौन कहाँ पर आएगा। तो वो जो मोमेंट था ना, वो एकदम हिट कर गया कि यार ये चैलेंज करके जा रहा है, तो हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो मेरे को एक दुख भी लगा था कि एक एज अपलाइन अगर मैं डाउनलाइन की ज्वाइनिंग नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो वो डाउनलाइन क्या सोचेगा। एटलीस्ट सब कुछ सही था, मगर वो एक जो चैलेंजिंग मोमेंट था वो सबके लिए सरप्राइजिंग था, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी। तो वहां बहुत मजा आया, और वो दुख भी हुआ मेरे को कि मैं ज्वाइनिंग नहीं निकल पाया। और उसी के साथ साथ एक और मोमेंट है जो मेरे को सबसे ज्यादा सैड करता है कि मेरे फादर ने मेरे को एक फोन दिलाया था, सैमसंग गैलेक्सी A30, लगभग 15,500 का वो फोन था। और मुझे आज भी याद है कि मैंने घर पर बोला कि मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया और फोन तो मेरा टूट गया। मम्मी बड़ी दुखी हुई कि फोन तुमने तोड़ दिया बेटा, 15,500 रुपए खराब हो गए। लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं खुर्जा से दिल्ली जाता था जिस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, एक पैसा मेरे पास नहीं रहता था। हम विदाउट टिकट सफर करते थे, मगर मेट्रो में तो नहीं कर सकते, उसके लिए पैसे चाहिए होते थे। हम्म। तो मैंने अपना फोन सिर्फ 5,000 में सेल किया था, 15 दिन चला हुआ फोन, 5,000 में सेल कर मतलब कर मैं। आपने आपने यस 15K का फोन सिर्फ 5K में सील करा फॉर योर यस मेट्रो जर्नी? यस यस, फॉर मेट्रो जर्नी की मैं ज्वाइनिंग निकाल पाऊँ, और एक एक्सपीरियंस हो मेरे पास भी कि मैंने लाइफ में ऐसे ऐसे चीजें करी हैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि सीखा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए तो जान भी कुर्बान है।
तो ये एक अगर मोमेंट मैं था आपसे सर। सिंपल सा अगर मैं आपसे सिंपल जी सा एक सवाल पूछूं, जब आप 15K का फोन 5K में दे रहे थे, बात उसकी भी नहीं है, तो आपको कभी फैमिली का वो नहीं आया, डर नहीं आया कि फैमिली सर, मारेगी, पापा तो इतना एंगर करेंगे, ये होगा वो होगा? फैमिली का डर तो सर तब आता है जब मान लो कि मैं 15,000 का फोन 5,000 में इसलिए बेच रहा हूँ कि मुझे शिमला घूम कर आना है। लेकिन ये बात थी मेरे ड्रीम्स की, मेरी लाइफ की, कि मुझे पता है कि आज ये 5,000 मैं कर रहा हूँ, मगर इस 5,000 से मैं कितना रिटर्न निकाल सकता हूँ ये मुझे अच्छे से पता था। तो मैं कभी घर वालों से घबराया नहीं कि मारेंगे, अगर वो मारेंगे तो सर वो उनकी भी बात ठीक है कि उन्होंने मेहनत करके मेरे को फोन दिलाया था। बट मुझे पता है कि उससे कितना रिटर्न आ सकता है, और मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कैसे की जाती है और कितना इससे रिटर्न भी हमें मिल सकता है। तो वो सर मेरे लिए कोई, मैंने कभी नहीं सोचा कि पापा क्या कहेंगे, वो बस एक ही झटके में जो दिमाग में आया फोन बेचना है तो फोन बेच दिया। अच्छा सर, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो एक है, एक एक मेंटोर और एक इंस्पिरेशन में आपके अकॉर्डिंग फर्क क्या है? यस यस सर। सर बेसिकली देखो, इस समय जो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो यही है कि मेरे पास एक मेंटोर नहीं है। इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं इंस्पिरेशन लेता हूं रतन टाटा जी से, जो उनसे मैं बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। मगर एक बात होती है मेंटोर की, एक वो इंसान जो, जिससे अगर मान लो कि आज मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी भी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो एक मेंटोर होता है जिससे मैं पूछ सकता हूँ। उसी समय मैंने फोन किया कि सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, तो प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए। तो एक मेंटोर होता है जो हमें हर कदम, हर एक स्टेप पर बताए कि भाई यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ संभल कर चलना, यहाँ छलांग मारनी है आपको। तो एक मेंटोर होता है जिसने उस लाइफ जर्नी को देखा हो और वो हमें भी सजेस्ट कर रहा हो कि ऐसे ऐसे मत करना। तो मेरे हिसाब से मेंटोर और इंस्पिरेशन में सिर्फ यही फर्क है कि मेंटोर हमें हर कदम के बारे में बताता है कि क्या हमें करना है, और इंस्पिरेशन लेना होता है कि एक वो इंसान जो टॉप पर बैठा है और उसके क्या क्या डिसीजंस उसे टॉप पर बिठाए रखने में मदद कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक आपके कितने मेंटोर्स रहे हैं? सर इससे पहले मैं अगर बात करूं तो मेंटोर एक ही रहे हैं, वो है मेरा फ्रेंड, और एक मेरे ब्रदर भी हैं। और फ्रेंड जो है मेरा, उसका नाम तन्मय है और कुर्जा का ही है सर। वो मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, मगर मेरी लाइफ के रिगार्डिंग उसने बहुत सारे सॉल्यूशंस मुझे दिए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस उसने मुझे दिए हैं। और एक सनी जी भी हैं, मेरे टीममेट ही हैं, और वो जब मेरे को सजेशंस देते हैं तो मेरे को एक लगता है कि हाँ साथ में है तो हम कर ही लेंगे। अब उसके बाद मेरे ब्रदर हैं, मेरे ब्रदर भी मेरे को बताते हैं कि, क्योंकि सर जो मेरी लाइफ है चैलेंजिंग वो उनकी भी रही थी। मेरे बुआ जी के लड़के ही हैं वो, जिन्होंने मेरे को मीट कराया था शिवम गोस्वामी सर से। तो वो मेरे को बताते हैं कि क्योंकि उनकी लाइफ खुद एक चैलेंजिंग रही है। पहले उन्होंने मैं कहूँ तो जीरो से और एक हीरो वाला काम किया अपनी लाइफ में। तो वो मेरे को सिखाते हैं। तो मेरे बेसिकली तीन ही मेंटर रहे हैं, और सबसे ऊपर एक ही दर्जा देता हूँ तन्मय को। ओके, मैं आपसे बस यस नेटवर्क मार्केटिंग की ही नहीं वो कर रहा बात, मैं आपसे अपनी आपकी होल लाइफ की बात कर रहा हूँ, आपकी होल लाइफ की, कि जी। सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। सर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है। इट्स ऑल, मैं जैसे, आपको पहले बता दूं, इट्स नॉट ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स अबाउट होल यस, लाइफ। होल लाइफ, यस एग्जैक्टली सर। सर सीखने की अगर मैं बात करूं तो लाइफ में अगर हम बात करें कि किसी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चीजें होती हैं सीखने के लिए, हमने वो सीख लिया। लेकिन जैसे कि आपको तो सब पता ही है, इनविटेशन एक टॉपिक होता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसके बारे में सीखते रहना बहुत जरूरी है। अगर इनविटेशन में आपने एक फॉर्मेट ले लिया और उसको ही अपनी टीम में मल्टीप्लाई करते गए, तो वो ऑब्जेक्शन पुराने हो जाते हैं, उसके बाद नए ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाते हैं। फिर उसके बारे में सीखना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से सर सीखने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि हमें इतना ही सीखना है या इतना ही सीखना है। मैं तो बस बल्कि ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे ब्रदर आईटी फील्ड से हैं, वो पाइथन की कोडिंग करते रहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये भी सीख लूँ। भैया मेरे बैंक का काम करते हैं, मेरा मन करता है मैं ये भी सीख लूँ। बट नॉट फॉर इस पर्पज से कि मैं जॉब करूँ या फिर मैं कुछ इससे करूँ, बट एटलीस्ट कि मेरे पास एक ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं, मेरे पास कोई भी बंदा अपनी प्रॉब्लम लेकर आए तो मैं उसको एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे सकूं। क्योंकि एक मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, इस पूरी दुनिया के अंदर हर कोई कन्वेंस हो सकता है, मगर कन्वेंस करने वाला चाहिए। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि उस कन्वेंस करने के लिए जब तक मेरे अंदर पूरी स्किल्स नहीं आती तब तक तो मैं रुकने वाला हूँ नहीं। आपके हिसाब से नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी है सर, गुड क्वेश्चन। ये मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज भी है। आई थिंक सर नेगेटिविटी, मेरे हिसाब से नेगेटिविटी तब आती है जब हम अपनी असली कैपेसिटी को भूल जाते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी को भूल जाते हैं। जिस इंसान ने अपनी कैपेबिलिटी पहचान ली है, खुद के साथ बैठा है, खुद के साथ मिला है कि हाँ मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे अब मैं हूँ, मैं पहले बहुत नेगेटिव हुआ करता था कि लाइफ में बहुत सारी मेरे साथ मोमेंट ऐसे आए कि सारे अपने मेरे को छोड़कर चले गए। दोस्त, बहुत सारे दोस्त थे जो
बेवजह छोड़कर चले गए, सब कुछ अकेला हो गया था, मैं बहुत नेगेटिव था। तो उस समय मैंने खुद को पहचाना, अपनी कैपेबिलिटी कि मैं क्या कर सकता हूँ। आलोक, अगर कुछ भी नहीं है तो तू कर क्या सकता है। तो मैंने अपनी कैपेबिलिटी पहचाना कि मैं एक ऐसे सेक्टर तक जाकर काम कर सकता हूँ कि जहां मैं भूखा ना मर जाऊं, और मेरा काम ना हो रहा हो तो मैं वो भी करूंगा। और मुझे अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं अब नेगेटिव नहीं होता। अपनी कैपेबिलिटी को पहचान लेना नेगेटिविटी को खुद ब खुद दूर कर देता है। तो जो लोग नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को नहीं पहचाना है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए? यस सर, डिड सबसे मतलब पहला जो स्टेप्स क्या क्या लिए? कैपेबल या तो सर, पहला जो मेरा स्टेप था वो था मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन करता था और खुद से मतलब पूछता था क्वेश्चन, खुद सेल्फ क्वेश्चनिंग कि अगर ये मोमेंट हुआ तो इसमें क्या होगा। जैसे मैं खुद से क्वेश्चन करता था कि अगर आज मेरे पास टीम है, 100-150 लोगों की टीम है, और अगर ये चली गई एक ही झटके में, तो उस समय क्या, मैं क्या करूंगा। तो दिल से एक ही आवाज आती थी कि अकेला ही काफी है भाई, दोबारा कर लेगा। जब कोई नहीं था तब भी तो तू अकेला ही था, तो अकेला दोबारा कर लेगा। तो सेल्फ क्वेश्चनिंग करी, मेडिटेशन किया। उसके बाद फ्रेंड से मिला, फ्रेंड से पूछा कि भाई मेरे अंदर की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है। तो उन्होंने बताया कि भाई तुझे एक दोस्त अच्छे बना लेता है, बहुत अच्छे से दोस्त बना लेता है, बहुत जल्दी बना लेता है। तो हर किसी से एक सजेशन लिए, सबसे एक टॉपिक लिए, बैठकर टॉप टॉप टॉपिक्स पर मैंने एक एक्सपर्टीज अपने अंदर डालने की कोशिश करी। तो फर्स्ट मेडिटेशन था, देन सेल्फ क्वेश्चनिंग, और तीसरा मैंने लोगों से एक तरीके से सर्वे किया अपने लिए। तो उन 3 चीज़ों से मैंने अपने आप को एक कैपेबिलिटी पहचानी। आलोक, कि कितना फर्क है फर्स्ट टाइम जीरो से स्टार्ट करना और सेकंड टाइम जीरो से स्टार्ट करने में? फ़र्क तो सर देखिए कि जो टीम होती है हमारा, मैं कह सकता हूँ कि टीम को एक तरीके से हम एक पेरेंट्स होते हैं अपनी टीम के लिए, जो उनके लिए पूरी मेहनत करते हैं, उनको कोई दुख ना हो, कोई चैलेंज ना आए, क्योंकि जो चैलेंज हमने फेस करे हैं एटलीस्ट मैं उनको तो ना होने दूं। और मैंने हमेशा यही ट्राई किया है कि मैं हमेशा उनको अपना बेस्ट दूं, और जो चैलेंज मैंने फेस किए हैं, जो दिक्कतें मेरे सामने आई हैं, वो कभी दिक्कतें उनके सामने ना आए। तो मैंने हमेशा बस उनको वही सिखाने की कोशिश करी है। और अगर उसके बाद भी वो जाते हैं और अगर मैं फिर दोबारा जीरो पर आ जाता हूँ, तो फर्क तो सर यही है कि देखिए, दुख होगा, बट मैं इसमें कोई फर्क नहीं समझता, क्योंकि बेशक 1 महीना लेट होगा, मगर 1 महीने बाद दोबारा मैं खड़ा होऊंगा और दोबारा कुछ ना कुछ कर कर दिखाऊंगा। ओके, तो एक सबसे यस, इम्पोर्टेंट सवाल इसके अंदर ये आता है, जैसा कि आपने बोला कि आप अपनी टीम को एज अ पेरेंट्स वो करते हो, यस, यस, मेंशन करते हो, तो यस, यस, हर हर माँ बाप के कुछ ना कुछ शैतान बच्चे जरूर होते हैं जो बात नहीं एग्जैक्टली, मानते, एग्जैक्टली, शैतानी करते हैं। उनके दिमाग में एग्जैक्टली हर सर। टाइम कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि भाई मैं क्या मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप का। तो यस, ऐसे यस, बच्चों को आप डील क्या कैसे कैसे करते हो? यस, यस सर, मैं आपको बताऊं कि मेरे टीम में कुछ लोग थे, और वो मेरे से बेसिकली सर मतलब मैं मीटिंग में बैठा हुआ करता था, मीटिंग में बैठ के हम ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग के बाद उठकर वो बोला करते थे कि अरे क्या है यार, ये ऐसा थोड़ी होता है, अगर टूर कोई निकला तो यार इतना बिजनेस ले रहे हैं और यहाँ घुमा रहे हैं। तो मतलब एक टीम को नेगेटिव करने का काम वो करते थे। तो उनको बेसिकली डील सिर्फ मैं ऐसे ही करता था कि मैं उनको सिर्फ अपने पास बिठाता था, उनसे पूछता था कि आप देखो करते क्या हो। वो अपने बारे में पूरा बताते थे। तो मैं सर बेसिकली उनका पेन पॉइंट सबसे पहले ढूंढता हूँ कि कहाँ उनका पेन पॉइंट है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक पेन पॉइंट होता है। तो किसी का पेन पॉइंट निकलता था, उसके फादर, मेरे दिल्ली की टीम में हैं जिनके फादर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो मैंने वो पेन पॉइंट ढूंढा कि वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पैसे की तंगी होगी। तो मैंने उनको बिठाया, उनको पूछा कि अगर आज कुछ ऐसा हो जाए, जैसे आज ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, मैंने उनसे पहले क्वेश्चन किया था कि एक ऐसा टाइम आए जब ऑटो रिक्शा भी ना चले, तब क्या होगा तुम्हारे घर में। तो उनका पेन पॉइंट पकड़ा, और वो कहते हैं ना कि दुख की हुई नस पर हाथ दबा दिया तो अपने आप सब सेंटर में आ जाते हैं। तो वही उनके पेन पॉइंट को पकड़ा, उनसे क्वेश्चन करे, तो वो खुद समझ जाते थे कि हाँ, मैं अब करना क्या है। तो ऐसे में आपका पेन पेन पॉइंट क्या है वर्क करने का? बेसिकली सर, मेरा पेन पॉइंट ये है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करना चाहता हूँ, मैं सर 2 चीज़ों को अपना एम बनाकर चलता हूँ। मेरी लाइफ के 2 ही मोटिव है। पहला मोटिव है कि सर मेरे को मेरी मदर के लिए करना है जो भी करना है, क्योंकि मेरी मदर ने हमेशा मेरे सेक्रीफाइस करे हैं, और एक ऐसा टाइम भी था कि मेरी मदर ने 4 साल तक एक साड़ी की शॉपिंग भी नहीं करी थी, सिर्फ पैसों की तंगी की वजह से। 4 साल में एक भी साड़ी उन्होंने नहीं ली थी, 4 साल में कुछ भी नहीं लिया, बल्कि अपने पैसे जो इकट्ठा किया करती थी मेरे को ही दिलवाती थी, और वो आज भी ऐसे ही करती हैं। अपने लिए नहीं दिलवाती हैं, और वो मेरे को ही करती हैं। तो पहला मोटिव है कि मुझे जो भी करना है अपनी मदर के लिए करना है, और मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग आएंगे, एटलीस्ट उनमें से कुछ लोग होंगे जो मेरी तरह होंगे, जिनकी मदर मेरी मदर की तरह होंगी।
तो मैं कभी ये नहीं देखना चाहता कि उनकी मदर सैड हो, क्योंकि मैं दूसरों की मम्मी में भी अपनी मम्मी देखता हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहता वो सैड हो। और दूसरा सर मेरे लिए लाइफ का जो एम है वो बेसिकली एनिमल्स के लिए है कि मुझे चैरिटी ओपन करनी है डॉग्स वगैरह के लिए जो रास्ते में ऐसे ही घूमते हैं, तो उनको एक हाउस प्रोवाइड कराना और उनके लिए फीडिंग एक खाना प्रोवाइड कराना, कि एटलीस्ट कभी भी उनकी लाइफ में जैसे बारिश हो रही है तो एक जो जानवर है मेरे उसमें चैरिटी में रह सकें, हाउस में रह सकें, उनको रोज का खाना प्रोवाइड कराना। तो मैंने बेसिकली इसका पूरा एक चार्ट भी बना रखा है, मुझे कैसे कैसे स्टार्ट करना है, और पूरे 10 साल का ये चार्ट है। 10 साल में मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि मैं एटलीस्ट पूरा देश ना पर अगर अपना पूरा स्टेट कवर कर सकूं एनिमल्स के लिए कुछ करने में। लाइफ आलोक, कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि आपने सोचा यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपका मन किया कि मैं चला जाऊं, बस सब कुछ छोड़ा छाड़ा एग्जैक्टली और सर। गो ओवर? नहीं सर, हुआ है आया ऐसा, कभी मैं ऐसा? आपको बताऊं सर। यस सर, बहुत बार हुआ है ऐसा, एक बार नहीं बहुत बार, 2-3 बार मेरे साथ हुआ है कि मैं बैठ जाता हूँ। जैसे मैं जब दिल्ली जाता था, ट्रेन में जब जाते थे या बस में जाते थे, तो खुद के लिए एक टाइम मिलता था, उसमें हम ईयरफोन्स लगा लेते थे, गाने सुनते थे। मगर एक दिन मैं बैठा है, मैंने सोचा यार आलोक हो क्या रहा है ये, बस घर से निकलना, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ अच्छा चल भी नहीं रहा था सर। तो उसमें क्या था कि उसमें सब एटलीस्ट कि मैंने खुद से पूछा कि क्या चल रहा है, सारे दोस्त कोई बीसीए में है, कोई बीएससी में है, कोई इवन आईआईटी में है, कोई बंदा वो आईआईटी सेलेक्ट हो गया है, कोई नीट में क्रॉस कर कर मेडिकल में चला गया है। तो तू क्या कर रहा है आलोक भाई, क्या चल क्या रहा है, ये कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा, तू तब भी अपना पूरा एक दिए जा रहा है। तो खुद से पूछा कि क्या हो रहा है यार, ये कैसे, मतलब मैं तो पीछे चल रहा हूँ समाज से, बहुत ज्यादा पीछे चल रहा हूँ, एक स्टेटस जो भी तुझे मेंटेन करना है वो तो बहुत पीछे रह रहा है। तो बस उस समय यही क्वेश्चन आया था खुद से। मगर वहां पर सर एक चीज भी मैंने देखी थी कि सर जो गॉड होता है ना, जो भगवान, वो सबसे कठिन लड़ाइयां अपने सबसे अच्छे योद्धाओं के लिए छोड़ता है। तो बस यही था कि जो जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं आज झेल रहे हैं, पर आगे समाज से आगे जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का तो पक्का है कि वो एक स्टेबल हो जाएंगे, कि इतनी इनकम है तो वो 2-3 साल वहीं पर टिकेंगे। लेकिन जो हमारा होता है कि हमारे में जितना पूरी लाइफ की इंक्रीमेंट होती है वो 1 महीने में भी हो जाती है। अच्छा आलोक, वो आपके हिसाब से वो कौन कौन से इंसान थे कि जब आप बहुत ज्यादा लो डाउन करते, जिन्होंने आपको ऊपर उठाया उस टाइम पे आके, आपको एक यस रास्ता दिखाया उस टाइम पे, चाहे मैं फोन कह सर। लूँ चाहे मैं सीरियसली कह लूँ, वो कौन कौन से इंसान थे वो? सर दो ही इंसान है मेरी लाइफ में, दो दो नहीं सर, 3 इंसान है। सबसे पहला जो नाम आता है सर वो आपका ही नाम आता है। हमेशा जब भी प्रॉब्लम हुई है मैंने आपको ही कॉल किया है, और आपने एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूँ सर, एक वो सॉल्यूशंस दिए हैं कि मैं उस चीज से बिल्कुल दिमाग ही हट गया, और प्रॉब्लम से दिमाग हटकर सॉल्यूशन पे दिमाग आ गया। तो सर पहले इंसान तो आप ही हैं। उसके बाद जो दूसरा नाम कोई आता है ये वो ना है बोले सनी कि मैं का। अपने कोई ये ना बोले नहीं, कि मैं अपनी फेक तारीफ करवा रहा अरे नहीं नहीं सर, हम तो इंडस्ट्री सेम है मगर कंपनी तो अलग है ना। फेक तारीफ क्या सर, जो आपने किया है वो तो सर जेन्युइनली तारीफ करने के लायक है। अब उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है सर, वो सनी जी है, मेरे टीममेट ही हैं। हालांकि मेरी डाउनलाइन है, मगर सर मैं हमेशा ये बिलीव रखता हूँ कि मैं अपनी डाउनलाइन से भी कुछ ना कुछ सीखूं। तो हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, हमेशा साथ दिया है। मेरी सिस्टर है और उन्होंने भी मेरा हमेशा साथ दिया है। मेरी एक चाची की लड़की है, मुझसे छोटी है वो, मगर मुझे हमेशा सिखाती है। अभी बीच में सर मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था बहुत ज्यादा लाइफ को लेकर, तो उन्होंने ही मेरे को बाहर निकाला था कि भैया आप तो हमारी एक इंस्पिरेशन हो, हम आपसे ही सीखते हैं, और आप ऐसा करोगे तो कैसे होगा। तो मैंने हमेशा आप इन 3 लोगों से सीखा है हमेशा लाइफ में कि कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। आपने भी दो ही बताए हैं, शायद एक और होना चाहिए। नहीं, सनी जी आप और सनी सिस्टर। जी, ठीक है, यस सॉरी यस। सॉरी। तो जैसा कि यस आपने सर। नाम लिया डिप्रेशन, तो आपके यस अकॉर्डिंग यस। ये है क्या एक्चुअली? व्हाट इज डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू यू? डिप्रेशन सर एक्चुअली कि हमने ओवर थिंकिंग करी कि मैं ये करूंगा, और एंड ऑफ द रिजल्ट वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो एक दुख होता है कि इतनी मेहनत करी और एक ओवर थिंकिंग करी कि हाँ मैं ये अचीव कर लूंगा, मगर आफ्टर सम टाइम हम वो कुछ अचीव नहीं कर पाए। तो वही एक सबसे बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का, कि हमने बहुत कुछ सोचा उसके लिए, अपना 100% तो खैर कोई नहीं दे सकता, मगर हाँ हमने बहुत मेहनत करी, बहुत हार्डवर्क किया, उसके बाद भी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। तो वहां एक डिप्रेशन का एक रीजन क्रिएट हो जाता है। अगर आप कभी भी जब आप डिप्रेस फील कर रहे होते हो, तो आपके यस अकॉर्डिंग इंसान को इससे आउट कैसे होना चाहिए? क्योंकि काफी सारे लोग इससे आउट नहीं हो पाते, फिर उनके स्टेप्स बड़े रॉन्ग हो जाते हैं। क्या आपके मन यस। में यस कभी आया कोई ऐसा स्टेप लेने का? यस सर, बिल्कुल भी आया, बिल्कुल आया था सर। एक टाइम था कि जब मेरा मन किया था कि यार अब बहुत हो गया, अब सुसाइड करते हैं। और वो आपसे जब बात भी हुई थी सर, आपको याद होगा आप आपने याद है व्हाट्सएप मेरे पर को। मैसेज किया था। तो एक टाइम था जब मैंने सोचा कि यार अब बहुत हो गया, अब
अब मतलब नहीं हो पा रहा, अब कुछ भी नहीं हो पा रहा। हाँ, लाइफ में कर बहुत कुछ सकता हूँ, मगर अब बहुत हार चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ से हार चुका हूँ, लोगों से हार चुका हूँ। अब एक टाइम है कि अब मुझे सुसाइड करना चाहिए, मैंने सोच लिया था सर पहले, लेकिन उसके अच्छा, बाद एक मतलब जो खुद बिल्कुल, से। एक सेकेंड, मतलब बिल्कुल फिक्स कर लिया था कि हाँ अब खत्म यस, है सब कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल फिक्स कर लिया था कि सब कुछ खत्म है आज के बाद। अब बस कुछ खास लोगों को बाय बोलूंगा, उनका थैंक यू बोलूंगा, और मैंने मैसेज कर भी दिए थे उनको कि थैंक्स अ लॉट फॉर मेरे को ऑलवेज। याद है आपका जब मैसेज आया था मेरे पास, मेरे को यस, याद है यस, वो यस, मैसेज। आपने मेरे को समझाया था। तो आप एक तो सबसे बड़ा रोल था कि आपने मेरे को समझाया था कि ऐसा स्टेप नहीं लेना है। और उसके बाद जो दूसरा फेस आया था वो मेरी मदर का आया था सर, मदर का। और जब मैं एक्चुअल में जब बाहर जाता था, लोगों को जानवरों को देखता था, मेरे को सर डॉग से बहुत प्यार है, और मैंने जब उनको देखा कि यार आलोक भाई, तेरे बाद इनका क्या होगा, जो तेरा सपना है कि इनको घर प्रोवाइड करना, एटलीस्ट तू घर में ना रहे मगर इन्हें घर में प्रोवाइड, इन्हें घर में एक घर दे सके रहने के लिए। तो मैंने उनकी तरफ देखा, अपनी एक जो चीजें होती हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, हमेशा उनकी तरफ देखा, और फिर उस स्टेप से मैं बाहर आया। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आलोक, जैसा कि आजकल एक काफ़ी सारी चीज़ें होती है हम यंगस्टर में, डेट इज़ अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, यस क्या सर। आपको कभी आपको साथ ऐसा हुआ कि इस चीज़ ने आपके दिमाग के ऊपर अफेक्ट किया हो कि यार वो बहुत अच्छी लग रही है, डेट इज़ टू कूल, डेट इज़ टू ब्यूटीफुल एंड अबाउट दैट, कि आपका काम, जैसे बोलते हैं ना, आपका ध्यान नहीं अपने आपके काम से हट गया हो, कि यार छोड़ो सब मैं कुछ जो है अभी वो है। सर मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 10th क्लास में था, पता नहीं भगवान ने सर मेरी लाइफ में क्या कैसे कैसे मोमेंट लिखे हैं कि जो सारी चीजें लोग अब करते हैं वो मैं 9th 10th में होकर छोड़ चुका हूँ। तो जब मैं 10th क्लास में था, तब मैं 10th क्लास में था, तब मेरा रिलेशनशिप हुआ था, और उसके बाद आई थिंक 12th तक हमने वो रिलेशनशिप हैंडल किया था। लेकिन 12th में अचानक से सर मैं फेल हो गया था 11th में। 11th के बाद मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ गया था। तो जब मैं 12th में था तो हमारा ब्रेकअप हो गया था। तो उस समय मेरा एक फ्रेंड था तोयश। तो मैं मतलब एक होता है ना, सब बौखला जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। मैं बम्बे पर गया, वहाँ खड़े होकर के आज मैं मरूंगा। अंदर से कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ होगा भी, बट हाँ ऊपर से दिखाने के लिए कि मैं मरूंगा। बट उसने मेरे को संभाला। उसके बाद फिर जब से और अब तक के बीच में अभी तक ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ कि मुझे किसी पर क्रश हुआ हो कि ये मेरे को अच्छी लग रही है या इसके साथ रिलेशनशिप में मेरे को आना है। अभी तक किसी के साथ मेरे को ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब मैंने लाइफ के अपनी दो ही गर्लफ्रेंड बना रखी है। पहली सक्सेस, दूसरी मेरी मम्मी। जब भी कोई चीजें होती हैं, डिस्कस करना होता है, मैं उनके पास चला जाता हूँ, उनसे बोलता हूँ। हालांकि वो मेरी बातों को समझती नहीं है, क्योंकि सर वही है कि जो लोग हमारे बैकग्राउंड से हैं वो हमें समझ सकते हैं, जो नहीं है वो नहीं समझेंगे। तो मम्मी से अपनी मोटिवेशन वाली बातें करता हूँ, एक सक्सेस वाली बातें करता हूँ, वो बेशक समझती नहीं है, पर मेरा दिल हल्का हो जाता है। वही वाली बात आ गई ना, फर्स्ट लव और फर्स्ट कंपनी, बुराई नहीं यस, यस, बोल दी जाती। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर। तो आलोक, ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि जब लोगों ने आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव किया होगा, भाई तेरे बस की नहीं है, तू क्या करेगा, अबे झंडू तू क्या करेगा, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते थे? मतलब उन लोगों की जो जुबान थी वो नहीं रुकेंगी, उसे आपने हैंडल यस कैसे सर। किया? सर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर के बराबर में एक ब्रदर रहते थे। उनका उनका रोज का काम है, अब भी मैं जाता हूँ तो अब भी रोज का काम है, मेरे को बुलाते हैं और एक कहते हैं ना फ्री फंड का ज्ञान, वो देते थे। और वो अब भी देते हैं कि अरे आलोक तू एक बात बता यार, इन सब चीजों में कर रहा है, क्या मिलेगा तेरे को लाइफ में। हम ये वाला बिजनेस करते हैं, हम वो वाला बिजनेस करते हैं। तो मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ, भाई बिजनेस तो मैं भी कर रहा हूँ, बिजनेस वो भी है, बिजनेस ये भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला इसको कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में अगर 2021 तक की बात करें, 15,730 करोड़ का इसका टर्नओवर होने वाला है। और 2025 तक एस्टिमेट है 63,000 करोड़ का ये टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री। तो ऐसा हलवा तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। अब वो मेरे को, और फिर उस केस में सर मैं करता क्या हूँ कि मैं सामने वाले बंदे को जज करता हूँ कि ये क्या कर रहा है। आज वो मेरे को ये ज्ञान दे रहे हैं, वो अपनी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको देखा कि वो दूध का व्यापार कर रहे हैं, भैंसों को पालते हैं, वो दूध का व्यापार कर रहे हैं बेचने का। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि क्या ये बंदा उस लायक है जो मुझे एक प्रॉपर नॉलेज दे सकता है, जो मेरे को इन चीजों में आर्ग्यू कर सकता है। तो वही चीज थी कि उनको मैं जज करता था कि ये वो बिजनेस कर रहे हैं, क्या इस बिजनेस का आगे की फ्यूचर है। आज चलो 3-4 साल हम कमा लेंगे, देन उसके बाद क्या होगा। तो पहले उनकी लाइफ में जाकर देखता हूँ कि वो आज उस लायक है भी या नहीं।
इससे मेरे को आपने काफी एक अच्छा सवाल दे दिया। जैसा कि आपने बोला सिर्फ लोग बोलते हैं, तो ऐसे ही यस हमारी यस इंडस्ट्री में भी ये जरूर होता है कि काफी लोग सिर्फ आपको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे करो, ये करो तो वो ज्वाइन हो जाएगा, ये करो, बस ये स्टेप लो, लेकिन वो कभी सामने आके नहीं दिखाते। तो ऐसे लोगों के लिए अगर मैं एग्जैक्ट। आपसे दो वर्ड पूछना चाहूँ तो? दो वर्ड तो सर, पहला तो यही है कि फ्री फंड में अपने बारे में मतलब अपना सजेशन जो है सर अपने पास ही रखिए। अगर आप सामने आ सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं फील्ड में उतरने की, तो ही आइए, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता फील्ड में आके काम करना। कुछ लोग होते हैं जो सीईओ बन के बैठे हुए होते हैं, मगर वो शायद अपनी लाइफ के सीईओ भी नहीं होते। वो अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते, वो हमारे क्या डिसीजन कर पाएंगे। तो उनको पहला तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपना ज्ञान अपने पास रखो, बाकी का मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज है कि मैं कभी ये चीज सर उनके सामने नहीं कह सकता। रीजन है, मुझे हर किसी की रेस्पेक्ट करना सर आता है और सीखा भी है मैंने, कि बेशक कोई कितना भी बेकार इंसान हमारे साथ हो, हमारे टीम में हो या हमारे अपने हो, हमें कभी उनके बुराई नहीं करनी है, क्योंकि लाइफ में हर किसी को एक पूरा रेस्पेक्ट देनी है। क्योंकि हर मतलब वही है कि सर अगर मैं हूं और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे एक इज्जत मिले, तो सबसे पहले ये है कि मुझे दूसरे को इज्जत देनी पड़ेगी। अलग एक सेकेंड, किसी ने यस। कमेंट किया है, भाई ये स्टार्टिंग से ही ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है। आई हैव आस्क्ड टू यू, प्लीज अगर आपको पसंद नहीं आता आप लेफ्ट हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे रहने की, बट ऐसे कमेंट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टू यू। अब वही मैं है सर, आपसे ये वो लोग एक हैं, वो लोग हैं, हम स्कूटी वालों से पूछ रहे हैं BMW कैसे खरीदनी है। चलो छोड़ो इस चीज़ को, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जी खैर, सर। जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा था कि नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव ओवरनेस, तो कभी कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके ऊपर चिल्ला जाए, रूडनेस कर जाए, तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तेरे को फोड़ दूंगा या ये है कुछ भी है, तो ऐसा कभी हो कि आपने अपना घर ही छोड़ दिया और वापस ही नहीं आए वहां पे? अरे सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आपको ये चीजें पता है। लेकिन सबके सामने कि लाना बहुत जरूरी है। यस यस सर। एक्चुअल में सर ये बात है, अभी जनवरी की बात है, दिसंबर लास्ट की। मेरे घर पर थोड़ा हम्म। सा पढ़ाई को लेकर सर थोड़ा हो गया था प्रॉब्लम, कि फादर कहते थे तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, ये सब छोड़कर। तो सर मेरे को पता है कि लाइफ में मुझे क्या करना है और मैं इस चीज से उन्हें क्या दे सकता हूँ। तो मैंने उनकी सुना नहीं था, बट थोड़ा गुस्सा हो गया था, वही थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी। तो उस समय मैंने क्या किया था, जनवरी में 1 जनवरी को मैंने अपना घर ही छोड़ दिया था। और ये उसी टाइम की ओके। बात है कि हाँ, उसी टाइम की बात है, मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन किया, काफी सारे दोस्तों को फोन किया, टीममेट को फोन किया कि कौन कौन मेरे साथ चल सकता है। तो सन्नी जी आगे आए, उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया बिना मतलब की, कुछ बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं, निशांत जी और सनी जी, हम 3 लोग थे जो घर छोड़कर आ गए थे। एंड उस समय क्या हुआ था, जनवरी में आया, मैं दिल्ली रहा था अपने टीममेट के घर पर, और 2 महीने मैंने वहां रहकर काम किया था, और उस समय चेक भी बनाया था अच्छा खासा। तो वही है कि पूरा घर छोड़कर मैं आया था, वहां पर चेक बनाया। तो मैंने उस चीज को प्रूफ किया, जैसे रतन टाटा कहते हैं कि मैं किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोचता नहीं हूँ, मैं डिसीजन ले लेता हूँ, उसके बाद में उसे सही प्रूफ करने में विश्वास रखता हूँ। तो मैंने वही किया, झट से एक डिसीजन ले लिया कि छोड़ना है तो छोड़ना है, और उसके बाद उस डिसीजन को मैंने सही साबित करके दिखाया। अच्छा लोग, एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है इसमें, जैसे कि जी आप जानते हो कि जब भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, जैसे कि आप यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इसके बाद जी। ना आपके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सी होने वाली है कि आलोक ने ये बोल दिया, आलोक ने वो बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी मेरे ऊपर हुई है उतनी शायद आपको भी पता है कितनी हुई है। तो इसके बारे में आंसर क्या है कि यार इस चीज को आप हैंडल कैसे करोगे? सर कंट्रोवर्सी की देखो, अगर मैं बात करूं तो सर एक ही मैं जवाब देना चाहूंगा, कि आपने हनुमान चालीसा देखी है सर यूट्यूब पर? हाँ हाँ, देखिए। हाँ, कुछ लोग सर डिसलाइक तो उसके ऊपर भी देते हैं। लेकिन वही वाली चीज है ना, एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब भी आप अगर आप किसी झूठ को बार बार बोलते हो तो वो सच भी झूठ लगने लग जाता है। तो जब यस लोग यस आपके ऊपर एग्जैक्टली। धड़ाधड़ 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 आंसर टू आंसर कर रहे होंगे कि ये बोल दिया वो बोल दिया, ये गलत बोला वो गलत बोला, उस टाइम क्या रिप्लाई होगा? उस टाइम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे? क्योंकि ये चीज तो होने वाली है। सर यस एग्जैक्टली सर, देखो सर, मैं एक चीज पर भरोसा रखता हूँ कि अगर मेरी इंटेंशन सही है किसी भी काम को करने के लिए, एक इंटेंशन मैं प्रॉपर लेकर चल रहा हूँ, अगर मैं नीयत अपनी अच्छी कर चल रहा हूँ, लोगों की हेल्प करना मेरा काम है, जानवरों के लिए कुछ करना मेरा काम है, मेरे सामने मेरी मम्मी का चेहरा हमेशा रहता है कि मैं कुछ भी काम करने जाऊं तो उनका चेहरा रहता है। बीच में कंट्रोवर्सी आती है जो मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करेंगी, तो उस समय सर वही है कि मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगा, बस स्माइल करूंगा, और अंदर अंदर ये सोचूंगा कि आज ये लोग मेरी कंट्रोवर्सी में 5 मिनट खराब करके आए अपने। अगर ये 5 मिनट अपने ऊपर देते तो शायद कुछ सीख कर आते। तो मैं तो अपना सीख रहा हूँ, मुझे मुझे उस तरफ ध्यान ही नहीं देना, मैं 10 मिनट खराब करूंगा, 10 मिनट में कुछ सीख लूंगा।
तो यही है सर, मैं अच्छा हमेशा सीखने में बिलीव रखता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और यस सर। कि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा हम लोग फेथ करते हैं, जिनके यस। ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनके जो हमें वो सिखाते हैं हम उसको सीखते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा हम स्टेप ले रहे होते हैं। बट जब एक टाइम पे आके वही लोग आपके आपके नेगेटिव बोलना शुरू कर दे कि वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, उससे ये नहीं हुआ, उससे वो नहीं हुआ, डालना ब्ला ब्ला ब्ला, उस टाइम क्या आंसर होता है? उस टाइम कैसे संभालना होता है? क्या सिचुएशन होती है उस टाइम पे? सर बेसिकली ये सिचुएशन मेरे साथ आ भी रखी है। तो उस समय क्या था कि जो कुछ लोग थे सर, हालांकि अब मैं उनके साथ नहीं हूँ, मगर पहले उन लोगों ने क्या किया कि हमेशा मेरी तारीफ करी, स्टेज पर बुलाया, हमेशा मेरे को एक मौका दिया कि हाँ मैं आकर स्टेज पर कुछ बोलूं और कुछ करूं। मैं स्टेज पर बुलाया और लोगों को बताया कि ये है हमारी टीम में डेडिकेटेड लीडर मिस्टर आलोक राणा। और हमेशा मतलब कहते हैं कि हमेशा अपने से ऊपर का एक दर्जा दिया। लेकिन मतलब कुछ समय बाद जब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, अब कुछ अलग स्टार्ट करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो वही लोग बोलने लगे कि इसकी नीयत खराब है, ये क्या करेगा, हमारे बिना ये कुछ भी नहीं है। तो बस सर वही है कि लाइफ में सर ये मोमेंट तो भगवान श्री राम के साथ भी आया था कि लोग उनके खिलाफ हो गए थे। हर कृष्ण जी के आज भी होता है सर, महाभारत के अगर कुछ लोगों को आप देखो तो वो कहते हैं कृष्ण जी की वजह से महाभारत हुई है, चाहते तो वो रोक सकते थे। तो बस वही है कि सर लोगों का मुंह हम नहीं रोक सकते। हमारा काम है निरंतर काम करते रहना, निरंतर एक कोशिश करते रहना, हमेशा एक कंटिन्यूटी बना के रखना। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि मैं कंटिन्यूटी बना कर रखूं और हमेशा वो करता। क्योंकि जैसे शादी में जब हम जाते हैं तो वो दूल्हे के बग्गी के आगे जो घोड़ा रहता है ना सर, उसकी आंखों पर जो ऐसे लगा रहता है, तो उस समय क्या होता है, उसे साइड का नहीं दिखाई दे रहा होता, बस सामने का दिखाई दे रहा होता है। तो बस वही है कि मैं साइडों में पट्टी लगा रखी है, मुझे सामने का दिखाई दे रहा है, ये साइड में कुछ भी करते रहे। अच्छा आलोक, जो एक बहुत अच्छा सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसा कि आप जी। जानते हो कि जब हम लोग सक्सेस के पीछे होते हैं कि यार हम लोगों को लाइफ में कुछ करना है, और जब ऐसे लोग आपको एडवाइस देते हैं कि यार जिन लोगों ने एक्चुअली अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं करा होता, अपनी लाइफ को टोटली वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जब वो आपको बहुत ऊंची ऊंची एडवाइस देते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे कर वैसे कर, तो उस टाइम मन में क्या आ रहा होता है? सर ऐसा कि जब वो लोग मुझे सजेशन देते हैं कि भाई ये काम ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं सर जो खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर मेरे को कहते हैं कि आलोक अगर ये काम भाई ऐसे हो जाता ना तो ये बढ़िया रहता, ये ये बढ़िया रहता, और ऐसे कर लेता तो ये और भी बढ़िया रहता। तो उस समय सर बस मन में एक ही ख्याल आ रहा होता है कि अबे यार, अगर इतना ही समझाने वाला होता तो भाई अपनी लाइफ में आज कुछ बनकर ये बैठा होता। बस उस समय मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ, बस मेरा काम है सुनने का। और वही है कि बचपन से एक हमने एक चीज सीखी है, टीचर्स ने भी सिखाई है कि यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। तो वही काम मैं वहां पर करता हूँ, सुनता हूँ और यहाँ से निकाल देता हूँ कि ये जो भी कह रहा है ठीक है। पर हाँ, मैं हमेशा एक चीज सर कोशिश करता हूँ कि उसके उन नेगेटिव पॉइंट में से मुझे एक प्लस पॉइंट मिल जाए ताकि वो मेरे बिजनेस में काम आ सके। अच्छा आलोक, एक सवाल है। लेट सपोज आप यस अपनी सर। लाइफ में सक्सेस हो गए, ये तो मेरे को पता है कि पक्का सक्सेसफुल हो गए, बट अगर कभी थैंक ऐसा यू सो हुआ मच सर। कि आप, हाँ, कि अगर आप इस फील्ड के अंदर आप सक्सेसफुल ना हो पाया, किसी अदर फील्ड में आप सक्सेस हो गए, तो क्या आप कभी इस फील्ड को डिसलाइक करोगे कि मैंने इसके अंदर इतने साल दिए या इतने टाइम दे दिया, बट फिर भी मैं किसी और फील्ड में सक्सेसफुल हुआ, इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हुआ? बेसिकली सर देखिए, अगर मैं बात करूं तो हमेशा मेरे माइंड में एक क्लियरिटी है कि सक्सेसफुल तो बिजनेस में ही होऊंगा, क्योंकि अदर ऑप्शन मेरे पास कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स छोड़ दिया, अब बेसिकली लास्ट ऑप्शन मेरे पास बिजनेस ही है। और भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही मैं सक्सेसफुल होऊंगा, और अदर बिजनेस में उसके बाद, क्योंकि विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ, वो बिजनेसमैन भी हैं, मगर उससे पहले उन्होंने उनकी एक्सपर्टीज है क्रिकेट में। तो सबसे पहले एक्सपर्टीज नेटवर्क मार्केटिंग में लूंगा। मगर आपका सर क्वेश्चन जो है कि उसके बाद में इस इंडस्ट्री को ब्लेम करूंगा, तो सर बस यही है कि अ, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो सर हमेशा मैं एक चीज का हमेशा भगवान का शुक्रगुजार रहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कहूँ तो एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जिसने मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज लाया है। हालांकि लोगों के लिए मैं बिगड़ चुका हूँ, उनको बदतमीजी से बात करता हूँ। अगर अगर मैं अपने सपनों के बीच में किसी भी चीज को नहीं देता तो मैं उनके लिए बुरा बन जाता हूँ। मगर उस केस में मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कभी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि यही इंडस्ट्री है जिसने मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाया है। एक लोगों से बात करने के लिए एक टेक्निक दी है, एक पर्सनैलिटी डेवलप कराई है, एक कन्वेंस पावर, एक कन्वेंसिंग जो होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आने वाला टाइम, तो गारंटेड है सर, आने वाला टाइम कन्वेंसिंग का मार्केट सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो कन्वेंसिंग की स्किल्स जो है वो इस इंडस्ट्री में मेरी सुधारी है। तो इस इंडस्ट्री का 100% गारंटेड हाथ है मेरे अंदर पर्सनल इंप्रूवमेंट करने में।
और वरना आज अच्छा, जो सर आज से मैं कहता आपके हूँ। सामने मैं बोल पा रहा हूँ, मैं पहले कभी ऐसे नहीं बोलता था। पहले अगर वीडियो कॉल भी, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं वो इस बात का प्रूफ भी देंगे कि मैं उनकी वीडियो कॉल पिक भी नहीं करता था पहले। मेरे को मन अच्छा ही नहीं करता था, एक हेजिटेशन होती थी, मगर आज मैं बोल पा रहा हूँ तो इसलिए की बड़ा। अच्छा, एक चीज़ और, लेट सपोज आज से 2-3 साल बाद जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके होगे, तो जब आप यस सर। पीछे अपने आप को रिवाइंड करोगे और इन सारे टाइम को याद करोगे, स्टार्टिंग से लेके इन सारे सालों को, तो मन में मतलब फीलिंग क्या होगी, क्या आ रहा होगा उस टाइम मन में, क्या इमोशन हो रहा होगा? फीलिंग सर, पहली जो एक चीज होगी हमेशा, वो मेरे हमेशा अब भी रहती है कि चेहरे पर एक स्माइल होगी हमेशा। कि जब मैं उस टाइम को याद कर रहा हूँ कि यार क्या दिन थे वो, ट्रेन में हम जाया करते थे विदाउट टिकट, दो डिब्बों के बीच में खड़े होकर, है ना, लोगों से डांट भी खाई है, लोगों के घर में जब प्लान दिखाने गए हैं सुना भी है। तो हमेशा एक स्माइल रखूंगा एक चेहरे पर अपने, और उस टाइम ये सोच रहा हूँ कि जो जो चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैं इस इंडस्ट्री से वो जो चीजें मैंने सीखी हैं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि लोगों को उन चीजों को सिखा सकता हूँ, ताकि आगे वो लाइफ में कभी भी उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। क्योंकि सर मैंने आपको बताया कि एक टाइम था जब मैंने सुसाइड का सोचा था, तो मैं तो वहां से हो गया, वहां से मैंने अपने आप को एक कवर कर लिया। मैं, मेरे को हेल्प मिली, आपकी मिली, बहुत सारे लोगों की हेल्प मिली। और कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको किसी की हेल्प नहीं मिलती, तो वो एक ऐसा स्टेप ले सकते हैं, तो मैं हमेशा उनके लिए करना चाहता हूँ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर सर आपने देखे होंगे 30-30 हजार, 40-40 हजार में अपने कोर्सेज सेल करते हैं पर मैं मैं हमेशा समझ फ्री में गया अब करता हूँ। आप। लिमिट सर, मैं लिमिट समझ गया कोई कि नहीं है सर। ये लोग मैं समझ ऐसे। गया क्या। हाँ, मैं समझ गया कि आप क्या 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 कहना चाह रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। अच्छा चलो, यस। अगर मैं आपकी फैमिली को हटा दूं, आफ्टर योर यस। फैमिली, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके ऊपर हाथ छोड़ा हो इस सब चीज़ों की वजह से, आफ्टर योर फैमिली, क्योंकि फैमिली का हाथ छोड़ना नहीं होता। यस यस सर। अगर सर मैं हाथ छोड़ने की बात करूं तो दोस्त ही हैं मेरे जब मैंने प्लान दिखाया उसके बाद कुछ मेरे दोस्त थे, एक दो दोस्त जिनसे मैं थोड़ा सी, मतलब एक होता है ना लगाव, होता है कि ये मेरे फ्रेंड हैं, उनको प्लान दिखाया, ज्वाइन नहीं करा, तो बुरा लगा। मैंने उनको बोला कि सबसे ज्यादा भरोसा था, एक कंट्रोवर्सी हो गई हमारे बीच में कि तूने ये करा वो करा। और मैंने उनको बोला कि भाई तू तो फर्जी का दोस्त है, हमेशा साथ देना चाहिए था, तेरे को साथ करना चाहिए। तो उस केस में क्या हुआ, लड़ाई हो गई हमारे बीच में, उसने गालियां दी, अपना हाथापाई हुई बीच में। मगर हाँ, अब मैं उनसे बहुत दूर हूँ, अब मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि सर लाइफ में वही है कि जो दोस्त होंगे, बेशक वो ना आए, वो बिल्कुल ना आए, वो बिल्कुल ज्वाइन ना करें, मगर मुझे कभी नेगेटिव नहीं करेंगे इंडस्ट्री को लेकर या किसी भी काम को लेकर। ओके। यस। अच्छा, अगर मैं फैमिली के बाद आपसे कोई भी 5 नेम्स पूछूं जिन्होंने यस। आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जिन्होंने आपको सिखाया, तो वो 5 नेम कौन कौन से होंगे? पहली सर, जो सपोर्ट करना एक अलग चीज होती है और सिखाना सर अलग चीज। तो सबसे पहले जो सिखाने में मेरे 5 नाम है, पहला सर जो नाम आता है, मेरे ब्रदर हैं नितिन, मेरे बुआ जी के लड़के हैं। और उसके बाद हैं अभिषेक सिंह सर, जो कि आप हैं। और उसके बाद आते हैं अभिषेक वर्मा सर। और उसके बाद आते हैं शैलेंद्र सर, और देन लास्ट में मेरे डाउनलाइन सनी जी, सनी गुप्ता। ओके, जिन्होंने आपको बहुत कुछ यस। सिखाया, आपको इंस्पायर्ड यस किया। सिखाया, आपके यस हिसाब सिखाया है। से आलोक, सबके लिए ना सक्सेस की जो यस। डेफिनेशन होती है वो अलग होती है, सबके लिए अलग एग्जैक्टली। होती है। बट यस। आपके हिसाब से वो क्या, वो एक कॉमन चीज़ है सक्सेस की जो बिल्कुल सेम है, और जो आप ये आंसर दोगे वो आप किस बिहाफ पे दोगे, किसने आपको उस चीज़ को लेके समझाया है? सक्सेस सर बेसिकली मेरे हिसाब से, जो एक मेरा मानना है, जो मेरे नज़रों में जो सक्सेस है, मेरी नज़रों में एक सक्सेस की डेफिनेशन शायद कुछ लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी नज़र में जो सक्सेस की डेफिनेशन है कि मैं उस काबिल बनूं कि लोग मेरे पास किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अपना क्वेश्चन लेकर आए, तो उस हर चीज़ की नॉलेज मेरे पास हो, एक परमानेंट, एक यूजफुल सॉल्यूशन देने के लिए। तो मैं एक उस लेवल पर पहुंचना चाहता हूं जहां लोग हर चीज में मेरे को सक्सेसफुल समझे, नॉट इवन नेटवर्क मार्केटिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, हर चीज के रिगार्डिंग, कोई भी वो मुझसे सॉल्यूशन पूछना चाहे, क्वेश्चन पूछना चाहे, तो मैं उनको लाइफ में हेल्प कर सकूं आगे ग्रो करने में। तो मेरे लिए ओके। सक्सेस का मायने इधर है लोगों के लिए। मैं देखो, अच्छा या बुरा बनना सर वो हमारे हाथ में नहीं होता, इंसान के हाथ में कोशिश होती है, वो करता है, रिजल्ट तो बाद में डिफाइन करते हैं। तो मेरे हाथ में बस एक ही चीज है, मैं सक्सेस के लिए बस यही चाहता हूँ कि हमेशा लोगों के लिए कुछ करूं, और जब मैं ऊपर जाऊं, यानी कि जब मैं इस दुनिया से विदा लूं, तो वो जानवर भी मेरा वेट कर रहे हो जिनके लिए मैंने कुछ किया है, वो इंसान भी मेरा वेट कर रहे हो, और वो देखकर खुश हो कि हाँ, इस पृथ्वी पर मैं आया था, तो मैंने वहीं पर रहकर उस इंडस्ट्री के लिए और लोगों के लिए मैंने कुछ किया, और जानवरों के लिए मैंने कुछ किया। ओके, दैट्स टू गुड टू। एंड हु इंस्पायर्स यू मोर, इन सब मैंने बोला ना कि आपको किन किन लोगों ने इंस्पायर्ड किया इन सब चीज़ों के लिए? यस यस यस।
इन सब चीज़ों के लिए सर सबसे ज़्यादा जो मेरे को इंस्पायर किया है सबसे ज़्यादा, तो वो मेरे फैमिली में है। मैं कहूँगा सर वो मेरे भाई हैं नितिन, जिनका नाम मैंने आपको बताया। वो हमेशा एक, बेशक सर मुझे डांटते हैं, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते किसी भी चीज़ को लेकर, बस इग्नोर कर देते हैं मुझे। पर हाँ, एक जो चीज़ होती है कि सॉल्यूशन जब वो मेरे को देते हैं रिगार्डिंग, मैंने जब भी उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछा, स्टार्टिंग करते समय पूछा, तो उन्होंने बोला कि 12th कंप्लीट कर ले उसके बाद करना। उन्होंने ये नहीं बोला कि बेकार है कुछ है। और अब भी आफ्टर 12 जब घर में ग्रेजुएशन को लेकर प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडस्ट्री बेकार है, हमेशा बोला कि सही चीज़ है अगर अच्छे से करो तो हमेशा उनको, उनका फैन हूँ मैं कि हमेशा सपोर्ट करा है उन्होंने। ओके आलोक, लास्ट यस आखिरी के 9 मिनट है हमारे पास, ठीक है? मेरा यस आपसे सर, एक सवाल है एग्जैक्टली। कि फेलियर कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में? फेलियर सर, मैं आपको बताऊं कि हमेशा एक चीज़ है कि मैं लाइफ में एक चीज़ को फॉलो करता हूँ। जब भी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी फेलियर आती है, तो मैं हमेशा उससे एक क्वेश्चन करता हूँ कि एक काम कर भाई, प्रॉब्लम या फेलियर, जितना तेरे में दम है एक और बार आ, मैं फेस करने के लिए बैठा हूँ। एक और बार, मजा आया तेरे को फेस करके, एक और बार आ, एक और बार देखते हैं किसमें कितना दम है, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा या तू वापस जाएगी। तो फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि फेलियर से सीखने को तो मिलता ही है, साथ के साथ फेलियर से हम उस मोमेंट से गुजर कर आते हैं जहाँ बहुत सारे लोग टूट चुके होते हैं। अगर फेल होने के बाद हम उन मोमेंट को क्रॉस कर कर आए, जैसे 100 मीटर में हर्डल्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं, हम उनको जंप कर कर आते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो गिर जाते हैं और वहीं पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दोबारा खड़े होते हैं, हर्डल्स को जंप करते हैं, बेशक फर्स्ट पोजीशन ना मगर थर्ड पोजीशन तक वो आते जरूर हैं। तो बस यही है कि फेलियर में कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा सीख कर और चलने में बिलीव रखता हूँ। आलोक, एक बहुत अच्छा सवाल मेरे मन में आया अभी। विदाउट फेलियर और विदाउट यस, स्ट्रगल की सक्सेस के बारे में आपकी व्यूज क्या हैं? 2 मिनट के अंदर ओवर करो। विदाउट फेलियर विदाउट स्ट्रगल सर, मेरे मायने में देखो सर, सबसे पहले स्ट्रगल होता है कि वी आर पुशिंग आवर लिमिट्स, हम अपनी लिमिट्स को उससे ज्यादा पुश कर रहे हैं, वो हमारा स्ट्रगल होता है। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिना फेवरेट, बिना स्ट्रगल देखे, बिना फेलियर देखे वो एक टॉप पर बैठे हैं। तो उनके लिए बस यही है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात है। तो वो लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है, वो सक्सेस ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। हमेशा वही प्लेयर्स ज्यादा लंबे चलते हैं जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने प्रोटीन नहीं खाई है। क्योंकि प्रोटीन वाले बॉडी बनाने वाले हमेशा फिर बाद में रह ही जाते हैं। जिन्होंने मेहनत करी है, डंबल उठाए हैं, हमेशा उनकी बॉडी लॉन्ग लास्टिंग होती है। आलोक, आपके लिए आपकी सक्सेस क्या है? सर मेरे लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी है कि लाइफ में मुझे इतना काबिल बनना है कि ऑल ओवर इंडिया एनिमल्स, कोई भी एक डॉग या कोई भी एक एनिमल ऐसा ना बचे जिसको मैं शेल्टर शेल्टर ना प्रोवाइड करवा पाऊँ। बस सर मेरे लिए यही सक्सेस की डेफिनेशन है। और एक मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं फ्री करना चाहता हूँ सब कुछ। और उसके अगर लिए आने जल्दी में वाले कुछ सोचा भी है सर। अगर आने वाले टाइम में मैं आपको बोलूं कि आपको एक स्टेज मिलेगी बहुत बड़ी, और आपको वहां पे किन्हीं भी 5 लोगों के साथ आपको वहां पे कोलैबोरेट करना है, तो वो 5 नेम यस, कौन कौन से होंगे आपके लिए? पहला सर जो कोलेबोरेशन के लिए, मैं पहला नाम आएगा संदीप महेश्वरी सर का। दूसरा आलोक, आएगा, यस, आलोक, आलोक, इन योर सराउंडिंग, इन योर सराउंडिंग। ओके, इन आवर सराउंडिंग, ओके सर। तो हमारी सराउंडिंग में जो पहला नाम आएगा सर कोलेबोरेशन के लिए, कि लोगों को हेल्प करने के लिए और एक प्रॉपर नॉलेज देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। तो सर पहला जो ऑन नाम है स्टेज। मेरी नजरों में, या ऑन स्टेज सर, पहला जो नाम है वो आएगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला तो आप पे ही लूंगा सर मैं, क्योंकि लिस्ट में आप हैं, मगर पहला नाम नाम आपका है, अभिषेक सर। देन इसके बाद जो मेरा आएगा वो है शैलेंद्र सर, और अभिषेक वर्मा सर मेरे साथ रहेंगे। और उसके बाद सनी जी मेरे साथ रहेंगे। एंड देन लास्ट मृदुल सर मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि ये ओके, 5 लोग हैं जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करने के कनेक्टिविटी लिए। करना चाहता हूँ। Yes. क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि ये वो बोरी है जो ठूस ठूस कर भरी है और मिट्टी निकले जा रही है नीचे से, इतनी नॉलेज का भंडार है वो। लास्ट में एक मैसेज। यस सर, लास्ट में मेरा मैसेज यही है कि लाइफ में देखो सर, कोई भी चीज, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, बट कोई भी चीज, जिस चीज पर हमने कदम रखा है, अगर उस पर हम सीधे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, देखो आसान कुछ नहीं होता। आसान कभी कुछ इतनी आसानी से मिलता नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, एक स्टेज ऐसा आएगा कि पीछे सब कुछ छोड़ने का मन करेगा, सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं। मगर वहां पर अपने आप को कंटिन्यूटी रखना सबसे बड़ी चीज होती है, और वहां खुद से
रुककर एक क्वेश्चन हमेशा करना कि भाई स्टार्ट क्यों किया था, और हमेशा अपने खुद को जानने की कोशिश करो। बंगला, गाड़ी, ये सब तो एक चीज है, अलग फैक्टर हो जाता है कि हमें अपनी कंफर्टेबल चाहिए, अपना एक कंफर्ट लाइफ चाहिए, मगर एक जिंदगी का एक मोटिव हमेशा अपने पास रखो कि एक ऐसी चीज जो तुम चले जाओ मगर हमेशा उसके बाद भी तुम्हारा नाम वो एक अमर रखे कि हाँ ये चीज वो कर कर गया था। तो लाइफ में एक ऐसा मोटिव अपने साथ रखो, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जिसका वाय जितना ज्यादा बड़ा होता है, उसकी जो डेडिकेशन होती है, उसकी लगन उतनी ही ज्यादा हाई होती है। आलोक 2 मिनट के अंदर मेरे को आंसर देना है, बस लास्ट क्वेश्चन है। यस सर, हमें यस। हम अपने विजन को साफ कैसे करें? विजन को साफ करनी है, एग्जैक्टली सर, गुड क्वेश्चन। तो सर विजन को जो साफ करने का एक जो फंडा है जो मैंने अपनाया, वो है सर इकिगाई। फाइंड आवर इकिगाई, आपने सुना होगा कि एक जापानीज टेक्निक होती है अपने विजन को क्लियर करने की, इकिगाई, जिसमें 4 सर्कल्स होते हैं और उसमें हम एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। उसमें पूछते हैं कि व्हाट आवर मिशन, हम ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हम एक्सपर्टीज हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो लोग जिसके लिए हमें पैसा भी दे सकते हैं। तो जो 2 ब्लॉक में आता है वो हमारा मिशन होता है, वो हमारा विजन होता है। फिर उसके बाद जो विजन आता है, उसके बाद हमें जो सेकंड थिंग करनी है, हमेशा हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है जिसमें हम अपना ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब आप कुछ लोगों को देखोगे सर लाइफ में, 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कहाँ किया है। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं अपना टाइम गुजारता कहाँ पर हूँ। उन्हें ये कुछ नहीं पता कि मेरा टाइम पूरे दिन में जा कहाँ रहा है। तो बैठें और लिखें कि मैं कहाँ कहाँ चीज़ें वेस्ट कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और देखें उसे कि जिसमें मैं दे भी रहा हूँ तो उसमें क्या मैं एक्सपर्टीज हासिल कर भी रहा हूँ, या फिर बस जस्ट मैं पढ़ता हूँ, करता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ। तो वही है कि एटलीस्ट 2 टॉपिक पकड़ो, मगर 2 टॉपिक पर एक एक्सपर्टीज हासिल करो, ताकि अगर उस टॉपिक में अगर किसी का नाम आए तो सबसे पहला नाम तुम्हारा है। तो ये विजन क्लियर करने का सबसे पहला तरीका सर जो मैं यूज करता हूँ। देन उसके बाद मैं हमेशा अपने विजन को टुकड़ों में बांटता हूँ। जैसे मेरा विजन है चैरिटी करना, तो वो मैंने एक ग्रुप में बांटा है कि पहले अपने गांव के अंदर, फिर अपने शहर के अंदर, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, उसके लिए क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ों से मेरे को हाथ डालने हैं, उनसे कितना पैसा लेना है। तो उस चीज़ का मेरे पास एक पूरा फ्लो चार्ट होना चाहिए। अपने जितना एम है लाइफ का, एक लाइफ का एम ज़रूरी है हमारे अंदर होने के लिए, वरना बहुत से लोग एम रखते हैं कि अच्छा पैसा हो और गाड़ी हो और बंगला हो, बस जिंदगी कट जाएगी, मगर एक लाइफ का मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच आलोक फॉर यस सर, थैंक यू सो मच सर। दिस सेशन। थैंक यू सो मच थैंक्स एंड फॉर यू, थैंक्स फॉर यू सर। keep shy so much. Thank you so much थैंक for यू this सो वेरी session. मच, थैंक यू सो मच। Okay, bye bye.